ओके सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद लाइट रीडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट सिंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड आई रियली डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोग खुद करते हो। तो इन एनी केस थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन हमें एनसीईआरटी भी हमारी साथ साथ कवर होती जाएगी। इट्स अ गुड हैबिट। ओके सो वर्क और एनर्जी की बात करते हैं without wasting any time reading से start करते हैं। So in the previous few chapters we have talked about the ways of describing motion of objects and the cause of motion and gravitation। Obviously हमने जब फर्स्ट चैप्टर कराया था मोशन में तो हमने देखा था डिस्क्राइब कैसे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट एंड एवरीथिंग। देन हमने कॉजेज ऑफ मोशन देखे थे कितने कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन हो सकते हैं, किस किस रीजन से हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं। देन हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था एंड ग्रेविटेशन किस वजह वजह से होता है, उसके रीजंस क्या क्या होते हैं एंड ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कैसे करता है डिफरेंट बॉडीज पे विद डिफरेंट मासेस। अब another concept that helps us to understand and interpret many natural phenomena is work. Closely related to work are energy and power. In this chapter we shall study these concepts. All living beings need food. Living beings have to perform several basic activities to survive. We call such activities life processes. ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा। The energy for these processes come from a food. We need energy for other activities like playing, singing, reading, writing, thinking, jumping, cycling, and running. Activities that are strenuous require more energy. ज्यादा जो एड्रेनल एक्टिविटीज होती है उसमें ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी लगती है। एनिमल्स आर टू एंगेज्ड इन एक्टिविटीज। सिर्फ ह्यूमंस नहीं होते जो एक्टिविटीज करते हैं, एनिमल्स भी एक्टिविटीज करते हैं। फॉर एग्जांपल हंटिंग फॉर देयर फूड और सिंपली वॉकिंग अराउंड ग्रेजिंग। तो एनिमल्स भी एक्टिविटीज करते हैं जिसमें एनर्जी लगती है। फॉर एग्जाम्पल दे मे जंप एंड रन, they have to flight. For example, birds do have to flight. They have to move around by flying, move away from enemies, find food, or find a safe place to live. Also engage with some animals to lift weights, carry loads, pull carts, and plow fields. All such activities require energy. Think of machines. List of the machines that you came across. Why do we need them? What do they need for working? Obviously, they require some source of energy. ओके मतलब उन्हें किसी ना किसी तरीके से कोई रिसोर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल पेट्रोल चाहिए, किसी तरीके से चाहिए कोई रिसोर्स जिसे वो कन्वर्ट कर पाए एंड मशीन वर्क कर पाए। व्हाई डू सम इंजन्स रिक्वायर्ड फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल? व्हाई डू लिविंग बीइंग्स and machines need energy? These are the few questions which you should be able to answer after the end of this chapter. In any case you can generally answer them sir, currently. Bolo sir, sleeping is an activity. Sleeping is not exactly an activity. Sleeping is resting technically. It's not an activity. It's not a physical activity. It's resting to regain like to regain your form, to regain your energy. Okay? Sleeping is a very important biologically. It's very important for being to function. A lot of the activities inside your body happens only when you sleep. So sleep deprivation can result in a lot of problems. For example, muscle buildup. No matter how much you go to the gym or do stuff like that, if you do not take proper rest, your muscles will not build up. Because your muscles build up, your muscles heal only when you are sleeping. It's a very important thing. Anyways, अब हम आते हैं next topic पे, work. What is work? There's a difference in the way we use the term work in a day-to-day life and the way we use in science. मतलब difference होता है दोनों में। हम जनरली वर्क हर को जो काम करते हैं उसको हम वर्क कहते हैं, लेकिन वर्क इन टर्म्स ऑफ साइंस इज डिफाइंड वेरी पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में मूवमेंट हुई या नहीं हुई, उस पर डिफाइंड होता है। तो टू मेक द पॉइंट क्लियर लेट अस कंसीडर फ्यू एग्जांपल्स। नॉट मच वर्क डन इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। अच्छा चलो एक एग्जांपल है but it's not even that important, but since we're reading it let's just go through it. Kamali is preparing for examination. She spent a lot of time in studies. She read books, draws diagram, organizes her thoughts, collect question papers, attend classes, discusses problem with her friends and performs experiments. She expends a lot of energy on these activities. In common parlance, she is working hard. All this hard work may involve a little work done if we go by the scientific definition of work. बट व्हाट इज द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, ये अभी तक हमें इंट्रोड्यूस नहीं करा गया है। वो अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि अगर कोई बहुत पढ़ाई कर रहा है, कोई बहुत मेंटल एक्टिविटी कर रहा है जिसमें इवन दो इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ एनर्जी, इन साइंटिफिक टर्म्स वो वर्क डन नहीं कहा जाएगा ज्यादा। क्यों ऐसा देखते हैं।
You're working hard to push a huge rock. Let us say the rock does not move despite all the effort. You're completely exhausted. However, you have not done any work on the rock as there is no displacement of the rock. तो अब वो किन चीजों की बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट की. तो वो कह रहे हैं अगर डिस्प्लेसमेंट होगी सिर्फ और सिर्फ तभी वर्क डन होगा. तो मतलब नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई टू पुश अ रॉक, how hard I try to push a rock, if it does not move, this simply means there is no work done. Acha. You stand still in few minutes with a heavy load on your head. You get tired. You have exerted yourself and you have spent quite a bit of your energy. Are you doing the work on the load? The way we understand the term work in science, work is not done. मतलब even if you are lifting a heavy object on the top of your head, मान लो आपके सर पे ऊपर एक 10 किलो की बोरी है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे आलू है, फिर मान लो कंटेनर में बहुत सारे आलू है, ठीक है. इवन दो यू आर लिफ्टिंग अ लॉट, और मतलब आप इवन जैसे जैसे टाइम पास करता जाएगा वैसे वैसे आपको हैवियर लगेगा वो, ठीक है, मतलब यू विल गेट एग्जॉस्टेड. बट अगेन दिस इज नॉट मूविंग, so this means again no work done. So displacement honi chahiye. Okay, you climb up a few steps of the staircase and reach the second floor of the building and see the landscape from there. You may even climb a tall tree. If we apply the scientific definition, these all activity involves a lot of work, because the moment you jump up the staircase, if you're jumping up the staircase from here to here, this means that you have a displacement. You have a displacement, correct? आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस डिफरेंट है. You have a displacement. This means work is done. Okay. Sir. बोलो. So while you are lifting a heavy rock or a brick, you can't stay still. मतलब सर आप थोड़ा तो मूव करते रहोगे ना. थोड़ा माइन्यूट. हाँ. So डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो नहीं है, मतलब इट्स लाइक मिनिमम. अगर आप बोल रहे हो थोड़ा सा भी इंसान डिस्प्लेस होता है, दिस सिंपली मींस कि वो बहुत कम वर्क डन कर रहा है, नॉट एट ऑल कंपेयर्ड टू द हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इन टू लिफ्ट इट. Think about it. Anyways, so in day-to-day life, we consider useful physical or mental labor as work. ठीक है, यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क. ठीक है, जनरल डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या होती है? अगर हम कहीं किसी भी चीज में बहुत दिमाग लगा रहे हैं जो कि यूजफुल है, या फिर हम उसमें बहुत लेबर, मेंटल लेबर लगा रहे हैं या फिजिकल लेबर लगा रहे हैं और उसका कोई यूज है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ रहे हो तो इवन दो साइंटिफिक टर्म में देयर इज नो वर्क डन, but in general sense आप बोलोगे yes you are working hard because you are studying which is useful. So the formal definition of work which we imagine in English in language subjects are not same as the scientific definition of the word. Activities such as playing in the field, talking with friends, humming a tune, watching a movie, attending a function, or sometimes not considered to be work. Even though ये चीजें general sense में work नहीं कहा जाता. For example, if you went on to see a movie, you'll not say I've been working. You'll simply say I was taking a break. But in scientific terms, since you had a lot of displacement to go and watch the movie, you move from one position to another position. This simply means you have done a lot of work. So scientific definition of work depends on displacement and not the logical meaning of work which we use in day-to-day lives. Okay. So sir, we can't say like going on a vacation is a resting because it includes traveling. Yeah, exactly. Traveling, if you're displacing, so scientific terms mein hamesha hi it is work done. But in general sense, we do not use work as a word like that. Okay. To understand the way we view work and define work from the point of view of science, let us consider the following situations. Push a pebble lying on a surface. ठीक है, now this could be one of the, ठीक है, for example अगर कभी आपको आता है question कि example of work done लिखना है आपको and you cannot think of anything, so you can use this. Push a pebble lying on a surface. The pebble moves through a distance. You exerted a force on the pebble and the pebble got displaced.
in this situation work is done. So this is a perfect example. अगर आपको कभी लिखना है कि work done में क्या होता है, कैसे example दो work done का. A girl pulls a trolley and the trolley moves through a distance. The girl has exerted a force on the trolley and it is displaced. Therefore, work is done. Lift a book through height. To do this, you must apply force. The book rises up. The force applied on the book and the book has moved. Hence, the work is done. Another example. Okay. A closer look at the above situations reveal that two conditions needs to be satisfied for the work to be done. So condition that needs to be satisfied for work to be done is a force should act on an object. Second, the object must be displaced. तो दो points हमने क्या सीख लिए? इसके लिए हमारे पास दो points है. Force must be applied on the object. Second, the object must be displaced. These are the conditions necessary for work done. अगर काम हुआ है, वर्क डन है, अगर वर्क डन है साइंटिफिक टर्म्स में, तो उसमें ये दोनों पॉइंट्स होने ही होने चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट, कि फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड. अच्छा, if any of the above condition does not exist, work is not done. This is the way we view work in science. A bullock is pulling a cart. The cart moves. The force on the cart and the cart has there's a force on the cart and the cart has moved. Do you think the work is done in this situation? क्या लगता है? Yep. तो मतलब फोर्स अप्लाई हुआ है एग्जैक्टली एंड उससे डिस्प्लेसमेंट हो रही है कार्ट की. So this means work is done. Yes. Okay, we do not need to. बोलो. सर केमिस्ट्री के मार्क्स मिल गए. केमिस्ट्री के मार्क्स मिल गए. वेरी गुड, नाइस. कितने हैं आपके? फुल. फुल, वेरी गुड. और सबको ही मिल गए? ओके. मतलब आपकी ओवरऑल साइंस के मार्क्स मिल जाए तो दूसरे एंड में. सर केमिस्ट्री वाली की लिस्ट भेजूं क्या? हाँ भेज दो, पर्सनली भेज देना मुझे. ओके. ओके, आगे पढ़ते हैं, अभी बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस? अभी तक हमने डेफिनेशन तो करी ही नहीं है वर्क डन की. चलो ठीक है. टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल कंसिडर द केस व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने रॉक को मूव करने के लिए फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो रॉक इसी डायरेक्शन में मूव करी, तो फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ऑब्वियसली डिस्टेंस यहाँ पे इसलिए नहीं यूज कर रहे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है. तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाइड है तो देखते हैं क्या होता है. तो लेट अ कांस्टेंट फोर्स F एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट. लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड टू द डिस्टेंस S in the direction of force. Let W be the work done. We define the work done. ध्यान से, we define the work done to be the equal to the product of force and displacement. Work done is defined as the product of force and displacement. ठीक है, सबको समझ आया इतना? तो W is equals to F into S, displacement. Thus, work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of force multiplied by the distance moved in the direction of force. Work has only magnitude and no direction. Work के पास सिर्फ magnitude है and कोई direction नहीं. ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ magnitude of displacement ले रहा है and वो same direction की ही बात कर रहा है. In equation 11.1, if F equal to 1 and S equal to 1, तो work done would be 1 Newton per meter. 1 Newton per meter is known as joule. So the SI unit of work done is joule, and joule is defined as the
अब यहाँ पे लिखो, ये जो है आपको ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ SI यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफाइन द SI यूनिट ऑफ वर्क डन, तो आप क्या लिखोगे कि SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल एंड 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन on an object when a force of 1 Newton displaces it 1 meter along the line of action of force or along the direction of force। ठीक है, ये जो मैं आप लोग को लिखवा रहा हूं लिख लिया करो बुक में। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। What is the work done when the force on the object is 0? अगर आप कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हो एंड तब भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आपका वर्क डन कितना है? W इज इक्वल्स टू F इंटू S। अगर F 0 है तो वर्क डन भी 0। तो अगर आप फोर्स 0 लगा रहे हो तो वर्क डन 0 होगा। या फिर अगर डिस्टेंस 0 ट्रैवल कर रहा है, अगेन ये F इंटू S है। अगर S 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो अगर दोनों में से कोई भी एक चीज 0 है, इसीलिए ये दोनों कंडीशंस कि फोर्स भी होनी चाहिए एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी होना चाहिए, तभी वर्क डन होगा। बिकॉज एक भी चीज अगर इनमें से 0 है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। बोलो। So, but in that case, the object is doing the work. नहीं तो फर्क क्या पड़ता है हमें, हम किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में ही पूछेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कोई फोर्स लग रहा है क्या, अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं, ग्रेविटी इज अ फोर्स, तो जब ऑब्जेक्ट एक फ्री फॉल में है तो देयर इज अ फोर्स जो उस पे लग रहा है, तो फोर्स अप्लाइड तो है ना, फोर्स अप्लाइड 0 तो नहीं है। So, but if you are, so sir, अगर हम बॉलिंग कर रहे हैं, हाँ, तो सर बॉल को फोर्स लगा देगा। अब बॉल ने फोर्स नहीं लगाया, आपने फोर्स लगाया है। आपने फोर्स लगाया, but हाँ, बॉल कोई फोर्स नहीं लगा रही, बॉल ने फोर्स दिया है। बेसिकली आपने जो फोर्स लगाया बॉल पे बॉलिंग के टाइम पे, वो फोर्स उसने रिटेन करा एंड वो धीरे धीरे फ्रिक्शन से रिड्यूस हो रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो वो इनडेफिनेटली उसी स्पीड से बढ़ता रहता। तो यू हैव अप्लाइड द फोर्स, नॉट द बॉल। एनीवेज, चलो एग्जांपल 11.1 देखते हैं, सिंपल है। सो 11.1, a force of 5 Newton is acting on an object। ठीक है, तो फोर्स कितना है? 5 Newton। The object is displaced through meter in the direction of force। तो 2 meter in direction of force, distance कितना है? 2 meter। If the force act on an object all through the displacement, then the work done कितना हो जाएगा? W is equals to F into S, which is equals to 5 into 2 or simply 10 joules। ठीक है? yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो ये क्वेश्चन करो फिर जल्दी से। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स असाइनमेंट 2 मुझे सब भेज देना क्लास से पहले। हाँ, तेरा तो अभी चेक कर दूंगा। क्लास से पहले आप लोग सब भेज देना, वरना होमवर्क में मार्क नहीं होगा ऑब्वियसली। Sir, 56. 56 आ रहा है, अभी चेक करते हैं। हाँ सर, मेरा भी सर 56 जूल्स आ रहा है। 6 joules, okay। So this is question in text question, okay। 7 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, फोर्स दिया हुआ है 7 न्यूटन। देन डिस्टेंस कितना है? डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। What is the work done? W is equals to 7 into 8, which is 56 joules। समझ आया सबको? दाक्षार्यन समझ आ गया आपको भी? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं।
Consider another situation in which the force and displacement are in the same direction. A baby pulling a toy car parallel to the ground, as shown in figure 11.4. Okay. The baby has exerted a force in the direction of displacement of the car. In this situation, the work done will be equal to the product of force and displacement. We have discussed that. In such situations, the work done by the force is taken as positive. Consider a situation in which object is moving with a uniform speed along a particular direction. Now retarding force F is applied in the opposite direction. That is, the angle between the two directions is 180 degree. Let the object stop after displacement S. In such situation, the work done by the force is taken as negative and denoted by a minus sign. The work done by the force is F into minus S or minus F into S. It is clear that the above discussion that work done by a force can either be positive or negative. To understand, let us do another activity. तो वो क्या कह रहे हैं, क्या समझ के देखते हैं. वो कह रहे हैं अगर सेम एग्जांपल लेते हैं. एक सेकेंड. सर आप कौन से क्वेश्चन पे थे? क्वेश्चन नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, हम ये क्वेश्चन कर रहे थे. क्वेश्चन ये भी तो हम डिस्कस कर रहे हैं. एक सर सेकेंड. कौन सा? ये डिस्कस कर रहे थे. अच्छा अच्छा. एनीवेज कैन आई, एक सेकेंड रुको. Anyways, चलो कोई नहीं. ओके, सो आई वाज सेइंग कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो वी आर पुलिंग इट, ठीक है, तो अगर मैं इसे पुल करूंगा, मान लो इसमें ये एक टॉय कार है जैसे उन्होंने ले रखी है, अगर मैं इसे पुल करता हूं तो दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी. एंड फोर्स आपने किस डायरेक्शन में लगाया था? फोर्स भी आपने इसी डायरेक्शन में लगाया था. इफ यू आर पुलिंग अ कार्ट तो यही होगा. ठीक है, नाउ इमेजिन कि आपके पास एक ऑलरेडी स्पीडिंग कार्ट आ रहा है. ठीक है, मतलब यही टॉय कार लेकिन ऑलरेडी एक स्पीड में आ रहा था. ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रहा था. नाउ यू वांट टू स्टॉप इट. ठीक है, स्टॉप इट, तो आपने उसे रोकने से पहले आपने उसे मान लो ब्रेक्स ही लगाए. ठीक है, रोकने की कोशिश करी और इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया. अब फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. ठीक है, आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो जिससे वो रुक जाए. एंड इसमें क्या आप कर रहे हो? आप उसे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो जिससे वो मूव करे. तो इसमें आपका पॉजिटिव वर्क डन होगा. ठीक है, एंड इसमें आपका नेगेटिव वर्क डन होगा. ठीक है, सिंपली इंडिकेटिंग कि इसमें आपने ऑपोजिट सेम डायरेक्शन में फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स सेम डायरेक्शन में थे. नेगेटिव वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में थे. ठीक है, ओके. सो इससे इस स्टेटमेंट पे आते हैं. वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो भी हमने डिस्कस करा. एंड वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन एज डिस्प्लेसमेंट. इंपॉर्टेंट. ओके, सो अब 11.2 ट्राई करते हैं. 11.2 ट्राई करो सब. 11.2 एग्जाम्पल. तो 1.5 को 10 से करना होगा पहले. 1.5 को 10 से करना होगा पहले. Multiply. Porter lifts a luggage 15 kgs from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Okay. आपको क्या क्या दे रखा है? आपको मास दे रखा है, आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एंड आपको एक और चीज पता होती है, F इज इक्वल्स टू m into a. A की वैल्यू तो आपको पता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
ट्राई करो, टेक 2 मिनट्स ट्राई करो। सो एक पार्टनर ने लिफ्ट करा और उसे क्या 15 केजी का ऑब्जेक्ट एंड उसे कितना अबव का रखा, 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड रखा। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। अच्छा, हमें सबसे पहले वर्क डन के लिए क्या चाहिए, एफ एंड एस। ठीक है, अच्छा फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है, मुझे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, मुझे ऊपर लिफ्ट करने में फोर्स लगाना है। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हो रही है, ऊपर की डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, नो प्रॉब्लम। तो एफ देखते हैं कितना है, हमें पता है एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। ठीक है, अब मास कितना है, एम इज इक्वल्स टू 50. एम इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, 15 केजी दे रखा है एंड एक्सेलरेशन कितनी लेते हैं, 9.8 ले लेते हैं। ठीक है, 9.8। ओके, अब सर डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है, हाँ जगह बोलो 10 ले लिया तो क्या। 9.8 की जगह 10 ले लिया, ऐसे कैलकुलेशन इजी करने के लिए तो। मतलब जनरली हमेशा 9.8 ही लेते हैं, तो दैट्स द रीजन 10 ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हो जाती है। सर अगर 10 लेंगे तो मैम मार्क्स काटेगी क्या? बेटा हो भी सकता है, बिकॉज अगर नहीं मेंशन्ड है तो 10 तो नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा मतलब 9.8 से कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, अगर ज्यादा मुश्किल लग रही हो तो 10 ले लेना, आई डोंट थिंक ज्यादा मार्क्स कटने चाहिए एनीवेज। तो इस डिस्टेंस 1.5 मीटर्स दे रखा है। ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, अच्छा ये बाय द वे ये डिस्टेंस क्या है, एक्सेलरेशन जो है इसमें नेगेटिव है, तो फोर्स कितना आ रहा है, m इंटू ए विच इज 15 इंटू 9.8 कितना आया, सर 147। 147। ओके, तो 147 न्यूटन्स का फोर्स है एंड 1.5 मीटर्स मूव करना है। ठीक है, तो नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन, W इज इक्वल्स टू F इंटू S, दिस इज 147 इंटू 1.5, कितना आ रहा है, चेक करो। सर क्यों, मैंने गलती से 1 ले लिया। तो ये कितना आ रहा है, चेक करो, इन्होंने भी 10 ले रखा है। देखो सर 10 लेना चाहिए। मतलब काफी लोग सी, जस्ट बिकॉज एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए काफी लोग 10 ले लेंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप 9 पॉइंट लोगे इट्स बेटर, बट इवन इफ यू सर टेक 10 इट्स ओके। 10 मीटर पर पर सेकेंड सर डिफरेंस तो सर बहुत कम ही आता है सर, बहुत कम ही आता है, 0.2। हाँ वही अप्रोक्सीमेशन का डिफरेंस है ना, 10 लेने से यही डिफरेंस आता है, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, दैट इज द ओनली रीजन कि सब 10 लेते हैं काफी क्वेश्चंस में। ठीक है, सर 220.5 आ रहा है। में 220.5 आ रहा है, ओके, सी 5 जूल्स की एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है। ओके ओके, But 4.5 joules क्या 4.5 जूल्स, एनर्जी का difference आ रहा है। चलो ये इंटेक्स क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो ये इंटेक्स क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, ओके, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स Is applied is on the body. applied and the object is displaced। सर कहाँ लिख रहे हो? दिख ही नहीं रहा। इस पे पीडीएफ पे अच्छा अच्छा ठीक कहाँ नजर है तेरी, एनीवेज है। लिख रहे हैं, force is applied and object is displaced। अच्छा, next है write an expression for the work done when force acting on an object in the direction of its displacement। तो ये तो कुछ नहीं करना, write an expression for work done which simply means W when force is acting on an object and the object is moving the direction of displacement, W is equals to F into S, वही फॉर्मूला। ठीक है, define 1 joule of work वो हम कर चुके हैं, मैंने आपको मार्क करा दिया था, ये ग्रीन में जो मार्क करा था हमने, 1 joule of is the amount of work done by object when the force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of force। okay, चलो ये एक न्यूमेरिकल कर दो जल्दी से। कौन सा, 4th वाला? हाँ बेटा, फोर्थ वाला।
हिमांश म्यूट कर ले, डिस्टर्बेंस आ रही है। सर 15 को हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ लेंगे। हाँ सर 2100 इसमें 21 शायद। 2100। ओके, सबका यही आ रहा है? हाँ जी सर। Yes, sir. श्लोक, अच्छा ओके ओके ठीक है, Yes, सबका sir. यही आ रहा है, सही है। फिर आई डोंट थिंक कराने की जरूरत है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सर 140 into 15 ही करना था ना? क्या? सर 140 into 15 ही तो करना। हाँ वही करना था बस। अच्छा तो अब हमें कुछ एनसीईआरटी के एंड में कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ है। इस चैप्टर में एनर्जी में बहुत कुछ है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो डोंट टेक दिस चैप्टर लाइटली, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड अभी बहुत कुछ करना बचा है। बट अभी हम कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करते हैं जो सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, इसमें बस आपको बताना है कि कौन कौन से में वर्क डन हुआ है, कौन कौन से में नहीं होना है। ठीक है, तो थिंक अबाउट इट, टेक अ मिनट एंड देन विल डिस्कस जल्दी से। चलो ठीक है, लेट्स डिस्कस। सो फर्स्ट, ट्यूमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, क्या इसमें वर्क डन है? यस सर। यस, बिकॉज वो ऑब्वियसली अगर पॉइंट में मूव कर रही है तो वो डिस्प्लेस होगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है एंड वो फोर्स लगा रही है अपने बॉडी के थ्रू, तो इसलिए यस इसमें होगा। अ डोंकी कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक, क्या? सर सोचो नहीं है। सर नहीं होगा ना, सोचो सोचो, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। सर डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। मतलब डोंकी कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक, डोंकी मूव तो कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सर बट वो लग रहा कैरी है। कर रहा है, मतलब खुद तो कर रहा है। मूव नहीं कर रहा मतलब? मतलब सिर्फ कैरी, सर वो कैरी कर रहा है ना, हाँ, तो वो डिस्प्लेस हो रहा है। मूव तो सर कैरी कर रहे हैं, मूव नहीं करते हैं। तो हमने भी एग्जांपल दिया तो सी, ध्यान से सुनते हैं। इवन दो इट्स मूविंग, अगर सेकंड पार्ट की मैं बात करूं तो डोंकी इज टेक्निकली मूविंग, ठीक है। मतलब पहले वो एक लोड कैरी कर रहा था लेकिन अब वो लोड कैरी कर रहा है, लेकिन हमें डिफाइन क्या करने का है कि वो जो लोड कैरी कर रहा है बैक पे, उसके टर्म्स में क्या कुछ वर्क डन है? ठीक है, नहीं। वो जो लोड है, क्या वो लोड को मूव कर पा रहा है? नहीं। लोड पोजीशन पहले भी डोंकी के ऊपर थी, लोड की पोजीशन वो थोड़ी दूर चल के चला जाए तब भी डोंकी के ऊपर ही है, तो इस केस में नो वर्क इज डन, ओनली बिकॉज कि लोड उसके लोड की जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो डोंकी के रेफरेंस में, रेफरेंस के से लेते हैं हम, डोंकी के रेफरेंस में चेंज हुई नहीं, तो लोड ने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करा। इट्स लाइक सेइंग कि अगर आप एक ट्रक में मूव, अगर एक ट्रेन में आप मूव कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एक ट्रेन में बैठे हुए हो तो ट्रेन तो स्पीड पे चल रही है, लेकिन आर यू डूइंग एनी वर्क? You are not doing any work because you are sitting in the train, you are not exerting any force, even though you are moving at a very high speed because you are in the train, but with reference to the train you are stationary. तो ये मोशन की डेफिनेशन से याद करो कि टेक्निकली द लोड इज स्टेशनरी विद रेफरेंस टू द डोंकी। सर अगर कोई फोर्स नहीं विजिबली वर्क नहीं होता है, हाँ, तो साइंटिफिक उस पे, तो सर हम ये बोल सकते हैं फोर्स 90 नहीं मतलब जरूरी नहीं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है फोर्स, जरूरी नहीं है। ये तो अभी वेट लिफ्ट कर रहा है इसीलिए हो रहा है ना, मतलब इट्स लाइक अ लॉट ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है, बट क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसमें? नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। डोंकी इवन इफ इट इज, मतलब जो डोंकी है वो अगर फोर्स लगा भी रहा है या उससे एग्जॉस्ट भी हो रहा है, एनर्जी भी लग रही है, बट इट इज नॉट चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द लोड। नेक्स्ट,
A windmill is lifting water from the well. बताओ सर हो रहा है। पक्का? यस सर। सर क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करता वेरी है। गुड। तो ये जो विंडमिल है ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या कर रहा है? पानी को खींच रहा है, इसीलिए यस। आई डोंट थिंक तुम्हारा आंसर था इवन दो अगेंस्ट द ग्रेविटी। एनीवेज, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। क्या लगता है? सर मैं यहाँ बैठ के तो सर फोन में सर नहीं कर सकता। सर नॉट डन। Not done? Photosynthesis? Not done या work done? Not done because actually no displacement is taking place even though it is requiring and it is providing energy to the plant. So no work done. A engine pulling a train. सर वर्क डन। सर इंजन तो वर्क कर रहा है। Engine work कर रहा है। Very good. So it's working and इसकी reason क्या होगी कि engine train को pull करने में किस force के against कर रहा है? Friction के against. तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट इंजन जब पुल कर रहा है ट्रेन को, जिसकी वजह से वर्क डन हो रहा है। फूड ग्रेन्स गेटिंग ड्राइड इन द सन। नो, ठीक है। अ सेल बोट मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। यस ऑब्वियसली बिकॉज इट इज मूविंग। फोर्स कौन सा है? विंड एनर्जी की वजह से वो मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, फोर्स भी लग रहा है। एंड दिस इज हाउ यू विल आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन। अगर कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है उसमें वर्क डन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप हमेशा डिफाइन करोगे कि क्या उसमें फोर्स लग रही है एंड क्या वो डिस्प्लेस हो रहा है। सुमा स्विमिंग अ पूल, फोर्स कौन लगा रही है? सुमा अपनी बॉडी से, ठीक है। एंड देन वर्क डन हो रहा है क्योंकि शी इज मूविंग। टोंग की जरूरत नहीं है, नो आंसर है इसका। विंडमिल लिफ्टिंग वाटर, विंडमिल लिफ्टिंग वाटर इज यस, क्योंकि विंडमिल फोर्स लगा रहा है and then against the force of gravity and then water is getting lifted from one point to another. ठीक है, तो आपको हर के लिए रीजन देना आना चाहिए, ठीक है। सर मुझे ग्रीन प्लांट वाला नहीं समझ में आया। ग्रीन, अरे बेटा कुछ मूवमेंट तो हो नहीं रही ना, वो सिंपली फोटोसिंथेसिस मतलब पेड़ तो अपनी जगह पे ही रहता है, आराम से खाना पका रहा है वो अपना, बट इट्स नॉट मूविंग एट ऑल। तो कोई डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रही, तो देयर इज नो वर्क डन, ठीक है। सर बट चीजें कैरी तो करती हैं। देखो मॉलिक्यूलर लेवल की बात नहीं करते हैं। टेक्निकली जब आप किसी चीज को, मान लो आप एक वॉल को पुश कर रहे हो, एक बहुत बड़ी वॉल है, इसको आप पुश कर रहे हो, ठीक है। इफ यू आर पुशिंग दिस वॉल एंड इवन दो देयर इज नो वर्क डन बिकॉज वॉल मूव नहीं करेगी, वॉल मूव नहीं करेगी, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो वर्क डन। बट आपकी मसल्स में, जब आप मसल्स में उसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो देयर इज अ मूवमेंट इन योर मसल्स, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ ब्लड, बट हम उसे साइंटिफिक टर्म्स में थोड़ी उन्हें कंसिडर करते हैं। दिस इज द रीजन, दिस इज द मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर, जब तुम सोचते हो ना कि व्हाई आर यू गेटिंग एग्जॉस्टेड अगर वर्क डन ही नहीं हो रहा, ठीक है। टेक्निकली साइंस के अकॉर्डिंग अगर बॉल को मूव करने में वर्क डन नहीं हो रहा, मतलब मैं एग्जॉस्ट भी नहीं होना चाहिए, एनर्जी तो लगनी नहीं चाहिए ना। लेकिन बिकॉज वर्क डन इवन दो दिख नहीं रहा है, क्योंकि बॉल नहीं मूव कर रही है लेकिन आपके बॉडी के अंदर के सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्ट होते हो। तो ऑन अ मोर molecular level or on a more cellular level we can understand कि movement हो रही है, but that does not mean कि object as a whole move कर रहा है। आप तो मूव नहीं कर रहे हो ना, ना ही दीवार मूव कर रही है, तो नहीं होगा। सिमिलरली फोटोसिंथेसिस में प्लांट तो कहीं नहीं जा रहा है, प्लांट तो अपनी जगह पे, उसके अंदर क्या हो रहा है वी डू नॉट केयर अबाउट दैट। ओके ओके सर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड एंड मूव्स along a curved path and falls back to the ground, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को क्या करा, थ्रो करा एट अ सर्टेन एंगल एंड देन वो ग्रेविटी की वजह से एक सेकंड, ओके। तो एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट से मैंने इसे थ्रो करा एंड देन वो ग्रेविटी की वजह से एक कर्व फॉर्म करके इस पॉइंट तक आ गई, ओके ओके। द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ आर अलोंग द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन, क्या सर ये तो उस पे डिपेंड करता है ना, डिस्प्लेसमेंट। हाँ ध्यान से सुनते हैं। तो जो हमारी ग्रेविटी की बात करते हैं, ग्रेविटी का वर्क डन कब होगा, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे, ठीक है। इसकी इनिशियल पॉइंट क्या है, ऑन द ग्राउंड। जब ये अगेंस्ट द ग्राउंड जाएगा, ठीक है, या टुवर्ड्स द ग्राउंड आएगा, तभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज जस्ट लुकिंग एट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट,
ओके, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखती है ग्रेविटी के सेंस में। अगर हम वर्क डन की बात करें तो ग्रेविटी वर्क डन तब करेगी जब वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करे। फॉर एग्जांपल एक टेबल पे एक पेन रखा हुआ था, ठीक है, देन दैट पेन फेल डाउन एंड केम टू द ग्राउंड, तो ग्रेविटी ने वर्क डन करा बिकॉज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुई, वो टेबल से नीचे आ गई, ठीक है। लेकिन अगर एक टेबल पे ही वो पेन रोल करके उसी टेबल पे रह जाए तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन करा? 0। सिमिलरली इसमें अगर ऑब्जेक्ट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाता है घूम फिर के, तो मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। तो मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? 0, ठीक है। तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी इज, बट सर देखा जाए तो जो पेन रोल कर रहे हैं टेबल पे, उस पे ग्रेविटी तो एट ऑल टाइम यूज हो रही है। एक्ट करने से कुछ नहीं होता है, एक्ट करने से कुछ नहीं होता। हमने डिस्कस करा था दोनों चीजें होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए एंड फोर्स भी लगना चाहिए। तो इवन दो फोर्स मतलब ग्रेविटी हर चीज पे एक्ट कर रही है, लेकिन ग्रेविटी वर्क डन तब करेगी व्हेन इट एक्सपीरियंसेस अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू जाएगी सिर्फ और सिर्फ, तभी हम बोलेंगे ग्रेविटी हैज डन वर्क, ठीक है। जी सर। ओके, ये क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे बिकॉज इसके लिए आपको नहीं, अभी एनर्जी की बात नहीं करी हमने। और कोई क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो? नहीं, आधी की बात नहीं, एनर्जी डिस्कस नहीं करा हमने। चलो एनी केस, और सारे क्वेश्चंस आपको एनर्जी डिस्कस करने के बाद आएगी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हम डिस्कस कर लेंगे, तभी समझ आएगी वो चीजें आपको ज्यादा क्लियरली। बट मेजॉरिटी न्यूमेरिकल्स जितने भी है वो सारे एनर्जी पार्ट में आते हैं। वर्क में बहुत कम न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सिंपली वो क्या, आप कैसे बनते हैं, ये वाले न्यूमेरिकल्स की फोर्स इज इक्वल्स टू सॉरी वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल बनता नहीं है इसका। दिस इज द सिंपल वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो ये बन पाते हैं। एनीवेज, हाँ सर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक को प्लग करते हो तो वो केमिकल एनर्जी करता है ना? नहीं, नॉट नेसेसरली। सो बल्ब को करोगे तो वो तो केमिकल एनर्जी देगा। नहीं, नॉट केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी चल सकते हैं वो, सर मतलब केमिकल आएगी ना, पहले फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, फिर ट्रांसफर होकर वो हीट एनर्जी होगी। if it is connected to a battery only then So chemical battery. energy, but नहीं, AC जो आप घर में यूज करते हैं यहाँ तो कहीं केमिकल एनर्जी नहीं। ये तो आप हाई मेजॉरिटी टाइम्स आप हाइड्रो पावर यूज कर रहे होते हो। सबसे पहले वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी हाइड्रो पावर, देन वो ट्रांसपोर्ट हुई, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके देन आप यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नॉट एट ऑल केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जनरली बैटरीज में यूज होती है सिर्फ, वो भी अगर मैं ड्राई सेल्स की बात करूँ तो ड्राई सेल्स में केमिकल एनर्जी तो होती है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट। नो, ड्राई सेल्स में होती है, ड्राई सेल्स में भी होती है, ठीक। एनीवेज, तो ये वर्क डन में इतना ही सेक्शन है। एनर्जी में, एनर्जी के लिए ज्यादा टाइम लगेगा थोड़ा और, मतलब यू विल रिक्वायर मच मोर टाइम इन एनर्जी एंड इन फैक्ट एनर्जी के बहुत इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू गो थ्रू वंस यू कैन सी दिस कि देयर आर वेरी टू मेनी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इन इट, एंड ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। सो ढंग से कर लेना एनर्जी पार्ट, ठीक है। एनर्जी हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट कराएंगे। इस क्लास में सिंस दक्ष इज रिक्वेस्टिंग कि आगे नहीं करना चाहते हैं तो हम इसी को रिवाइज कर लेते हैं एक बार एंड और थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। एनर्जी विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट क्लास। अगेन नेक्स्ट क्लास वुड बी extended class because energy is also a longer topic and it will take a lot more time, so we'll have to take more classes of it. Okay, in any case थोड़े और concepts discuss करते हैं।